Good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. We are back with our regular Wednesday meet, and I'm Shashidhar, your host. And the topic for today is thoughts and intuition. Yes, we have all seen that. So before I start the session and before we go into the depth of how to distinguish these and what are the benefits that we can derive from knowing the difference. Anybody who has anything to share, please go ahead. Your idea about the topic, your understanding of the topic, how you see the topic, and you can also share about what you have gained from the last two sessions, which were Spirituality Made Easy. That was session number 1 in the new series of programs that we have done. And the last session that we did, second session was the last week, where we talked of Maya Jal, Maya the trap. So we saw about the Jagat Mithya. We talked about that. Huh? So we talked about the illusion of the world. So we did all that. So anybody has any kind of questions or anything you want to share, please go ahead. And then we will move on with the topic for today. Yes. And Amitji, Tarunji, Leslie, if you're comfortable, you should switch on the video so the participants can also connect with you. Right. Veena ji, welcome. Great. Thank you. Okay. So anybody who wants to share? Otherwise, we move on with the topic. Ready to move on? Okay. So let's put our past sessions into the past. Let's get on with the present, right? Huh? So the topic for today, thoughts and intuition. So first we will look at what is thought. Let's look at that. विचार बहुत कॉमन है, हर इंसान के, हर नॉर्मल इंसान के अराउंड 60,000 थॉट्स इन ए डे आते हैं. I'm talking about normal people. Around 60,000 thoughts in a day. So we are all aware of and we have all experienced what is a thought. It arises in the mind field. So we have a mind body, मनोमय चित्त, मनोमय कोश, और उसमें ये विचार आपके एक सागर में जैसे लहर उठती है वैसे एक विचार उठते हैं. क्लियर है ये? राइट. एंड इन द माइंड वी आल्सो नो इट इज ए conscious mind and subconscious mind. So some thoughts would be from the conscious mind, some thoughts would be from the subconscious mind. I'm starting right from the basics, so that we can connect with what we are experiencing in life. In the conscious mind, we have at some time we have positive thoughts, and in some times we have negative thoughts, depending on the situation. अब सामने शेर आ गया, if you see a lion or a tiger in front of you, obviously that time it will be a stress response, or a fight and flight response is already on in the brain. So the thought possibly would be how to survive, how to fight, or how to run. So we can say that it is some kind of a crisis or a negative kind of a situation where you need a lot of strength in the body, either to run or to fight. So depending on the situation or the trigger, I say that whenever there is a trigger, there is a, you can say, what do you say? There is a modification of the mind. वृत्ति बोलते हैं उसे. तो scriptures में से वृत्ति बोलते हैं, which means there is a small disturbance. It's like throwing a stone in the still water. अगर लेक में या पॉन्ड में आप पत्थर फेंकेंगे तो एक रिपल क्रिएट होता है, करेक्ट? So that you can call as a disturbance. So there is a, because of the trigger, there is a disturbance, and that arises when it comes to the surface. It looks like a thought, but the thought arises from basically your sanskars or your deep impressions in the subconscious mind, correct? And the thought arises. तो ट्रिगर आता है और थॉट अराइज होते हैं, उस थॉट के साथ कोई इमोशंस भी हो सकते हैं, and then accordingly the brain processes and you do the required action. So that is how we live our life. Our experience is like that, everybody. Yes, I hope no exceptions, because that is the way the mind operates and the body operates, right? So there is an external trigger, the mind perceives it, and then the mind अपने ज्ञान इंद्रियों के थ्रू वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करता है और कर्म इंद्रियों के थ्रू बॉडी को एक्शन में लाता है. That is how we live our life, right?
So the starting point is always the trigger and the thought. Starts with a thought. So that is why thought is so very important, right? Thought is also considered to be the primary tool of creation. हमारे 3 tools of creation क्या हैं? Thought, words and deeds. That is how we manifest anything in our life. Correct? विचार हैं, उसके बाद हम उसको शब्दों में उसको व्यक्त करते हैं, तो वर्ड्स हो जाते हैं, लैंग्वेज आ जाती है, और उसके बाद हम उससे करस्पॉन्डिंग एक्शन लेते हैं. इसीलिए हम बोलते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, जब ये तीनों अलाइंड होते हैं मन से, वचन से और कर्म से, तो हम डिजायर्ड रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइफ में. तो अगर ये तीनों डिसओरिएंटेड हैं, आप सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं और कर बिल्कुल उसका उल्टा रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज नो अलाइनमेंट, तो द रिजल्ट्स विल बी हैप्पी. क्योंकि अक्सर हम जो सोचते हैं वो बोलते नहीं है, और जो बोलते हैं वो करते नहीं है. वी आर वेरी स्मार्ट, वी ट्राई टू बी वेरी स्मार्ट इन द आउटसाइड वर्ल्ड, बट दैट इज अ वेरी वेरी, व्हाट डू यू से, वीक वे आई वुड से, और रादर वेरी पावरलेस वे ऑफ लिविंग. लाइफ में कोई पावर नहीं है, फ्रीडम नहीं है, आपकी बातों का कोई मतलब नहीं है, और बड़ी जल्दी लोग समझ जाते हैं ये खोखला बंदा है, इसकी बातों पे विश्वास मत करो, ये बोलता कुछ है करता कुछ और है. सुना है? एंड देन देयर आर सम पीपल हु आर रिगार्डेड एज, अगर बोल दिया तो हो जाएगा काम. ही इज लाइक प्राण जाए पर वचन ना जाए. एक बार बोल दिया, ही इज मैन ऑफ हिज वर्ड, मैन ऑफ कमिटमेंट. बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? उन्होंने जो बोला वो किया. दैट मीन्स उनके थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस perfectly aligned है, so people can trust them. We experienced all this, so right now I'm just talking from our experience of life. Correct? So this is the basic understanding of thought. Yes. अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ जी, बोलिए. तो आजकल खास करके मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरे को बहुत दिक्कत होती है अपनी बात मनवाने की. मतलब आई थिंक एक्चुअली मुझे लग रहा है मैंने पर्सनालिटी में थोड़ा चेंज किया है कि मैं बहुत सॉफ्ट हो गई हूँ. व्हेन आई वाज इन कॉर्पोरेट आई वाज लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी क्लियर. आई थिंक आफ्टर मैरिज एंड विद ऑल दीज अदर रिलेशनशिप्स इन लाइफ आई हैव टू बिकम वेरी सॉफ्ट. ठीक है, मुझे बहुत तोल मोल के बोलना पड़ता है. So I just realized that while I like the change, मैं खुश हूँ चेंज से कि मीठा बोलना और अच्छा रहना और अच्छे से रहना, but I just realized that people don't listen to me. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिक्कत होती है अपना काम करवाने में. Okay, so what you are saying is earlier you were straightforward and people liked it. Did people like that? Hello, वीना जी, जब आप पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड थे. हेलो, am I audible? No. Okay, hold on. Solution, but this part I'm not liking. It is so difficult for me to get things done, business, etc. तो दूर दूर तक मुझे दिखता नहीं अपना. So I don't know if there is an answer to this. जस्ट क्योंकि अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं ना सर, तो इसीलिए मेरा ये सवाल आया. Sorry, yeah, I got rudely disconnected. So hold on, let me start from the beginning. So वीना जी, आपने कहा कि जब आप पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और ब्लंट थे, और उसके बाद जब आप कॉर्पोरेट में थे, उसके बाद आपने थोड़ा सा मेलो डाउन किया अपने टोन को, एंड नाउ पीपल डोंट लिसन टू यू. दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड. इज दैट राइट? हाँ, मुझे ऐसे लग. हाँ, ठीक है. तो पहले जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और ब्लंट थे, डिड पीपल लाइक यू? नहीं, लाइक तो नहीं हो सकता, बट आई वाज डूइंग वेल इन कॉर्पोरेट ना. Doing well is a different thing. Right now you are saying and they obeyed you, like they were listening to you, right? हाँ, क्योंकि वही रिक्वायरमेंट थी वहां पे ना. रिक्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूँ कि लाइफ में आपका एक बिहेवियर था और उसका एक इम्पैक्ट है, आपको ये देखना है. तो जब जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ब्लंट थे, तो लोग आपको सुनते थे और काम होता था कॉर्पोरेट में, है ना?
मे बी जूनियर्स, मे बी मतलब सीनियर्स। एक्चुअली मैं सोचती नहीं थी, आई थिंक मैं जैसी पर्सनालिटी थी शुरू से ही, मेरे को सोचने की जरूरत नहीं थी कि मैं ऐसे बोलूं और वैसे बोलूं और ये बोलूं और वो बोलूं। आई वाज जस्ट, मतलब जो मेरे को ठीक लगता है, आई वाज अ क्वालिटी मैनेजर, तो जो मुझे ठीक लगता है मैं वही करती थी। मुझे इस चीज की जरूरत ही नहीं महसूस हुई, ना मेरी फैमिली में कभी किसी ने बोला, पेरेंट्स ने, किसी ओके, ने नहीं बोला कि तुम मेलो डाउन हो जाओ, तुम धीरे बोल, तो मतलब ये अब तो क्यों मुझे मेलो डाउन हो गए आप? किसी ने कहा आपको मेलो डाउन क्यों हो गए? हाँ डेफिनेटली, मेरा जो कल्चर घर पे है स्पेशली, क्योंकि जॉब जब छूटी खास करके, और पहले ही थोड़े थोड़े इश्यूज आने लग गए, क्योंकि इनका रहन सहन और मेरे में फर्क था बहुत। That means your married life, you were adjusting and then you became mellowed down. You mellowed down, correct? That's what you're trying to say. हाँ, इवन नाउ आई थिंक यस। Okay, got it. और अब आपके घर वाले आपकी बात नहीं सुनते क्योंकि कॉर्पोरेट में तो अब आप हो नहीं। तो घर वाले आपकी बात नहीं सुन रहे, दैट इज योर पॉइंट ऑफ कंसर्न। एम आई घर अंडरस्टूड राइट? वाले तो फिर भी मैं कहती हूँ, अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा और अच्छे से बोल पाती हूँ। तो जब ये इश्यूज आने लगे घर पे, तो भगवान ने ही कहीं से बुद्धिज्म मेरे को दिया, तो बुद्धिज्म से मेरे को मेरा बड़ा फोकस हो गया कि आई शुड बी अ बेटर ह्यूमन, आई कैन मेलो डाउन, आई कैन बी स्वीटर। तो मैंने अपने सिचुएशन के ऊपर आ गई मैं। सो आई जस्ट, मतलब अब आई डोंट डिपेंड ऑन पीपल कि मेरे, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, आई एम ओवर द सिचुएशन, ऐसे कि मेरे को बात करने की भी जरूरत महसूस भी नहीं, मतलब आई जस्ट ट्राई एंड बी ऑन माई ओन। आर यू गेटिंग? मैं सब अपने आप ही कर लेती हूँ, अब तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। मैं, सी, आई एम यू ओवर आर द सेइंग सिचुएशन यू नाउ। आर सेइंग टू मेनी थिंग्स वीना जी। पहले आपको सिर्फ ये समझना है, हमारा टॉपिक आज थॉट्स का था। हाँ, let us go by basics and then we will see how you can analyze your life situation. अभी तो हमने टॉपिक शुरू भी नहीं किया। आप सिर्फ ये देखिए सॉरी, पहले आपके थॉट्स सॉरी। क्या थे और अभी आपके थॉट्स इस सिचुएशन में क्या हैं। दिस इज द बिल्डिंग पॉइंट ऑफ योर, दिस इज द फाउंडेशन फॉर योर एनी क्रिएशन इन योर लाइफ। डू यू एग्री? यस और नो? सब कुछ थॉट से शुरू होता है, यस और नो? हाँ, ऑफ कोर्स। Ah, good. So let us start from there, okay? And meanwhile, you keep analyzing your lifestyle, you keep analyzing your life events, and then we will see where you have to do the corrective action. You only can decide because it is your life ultimately, है ना? अच्छा, और कोई लास्ट आपकी थिंग, यस आई एग्री, लास्ट थिंग मे बी आई विल जस्ट, मतलब मेरे माइंड में इसलिए आया क्योंकि एक दो जगह मेरे पैसे फंसे हुए हैं, और मैं बार बार ही बोलती हूँ वो पैसे देते ही नहीं है। ओके, विल कीप दैट सिचुएशन असाइड। अभी छोड़ दीजिए, अभी ओके, सिर्फ थॉट्स को पकड़िए। आपके थॉट्स ओके। रिलेशनशिप को लेके क्या हैं, आपके थॉट्स पैसे को लेके क्या हैं। अभी थॉट्स को लीजिए विच आर अफेक्टिंग योर एरियाज ऑफ लाइफ। योर एरियाज ऑफ लाइफ एज यू हैव सेड इज योर फैमिली लाइफ, करेक्ट? कॉर्पोरेट लाइफ अभी अभी तो नहीं है। या आई थिंक ओके, वेल्थ, इट्स बेटर, wealth, या। you have given some money to people, they are not returning it. What are your thoughts about the whole thing? Positive, negative, क्या है क्या नहीं है, पहले उसको देखिए। Because starting point of all experiences is thoughts, correct? और यहाँ पे भी इंट्यूशन की हम बात ही नहीं करें क्योंकि इंट्यूशन का कोई स्कोप ही नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अभी सारा थॉट्स के लेवल पे बात हो रही है, ठीक है? गुड, सो stay with that, we will come back to you, okay? All right, let's acknowledge Veena ji, very good. And that is what I would invite all of you to look into your life situations when we are doing these sessions. If you are looking only at the theory, it will not impact your life. तो जैसे वीना जी ने अपनी लाइफ के इवेंट्स को देखा और वहां पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो हमको ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, ओके? बट अल्टीमेटली यू विल हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस इन योर लाइफ because you are living your life. I can only give you some pointers. Agreed? All right, let's acknowledge Veena ji once again. Anybody else who wants to share anything? And meanwhile, let me welcome Seed ji, welcome करा था आपको, शशांक जी and Suti Pandey ji, welcome. Yes, if you're comfortable, you should switch on the video. Otherwise, it is perfectly fine. Yes, anybody else who wants to share your life experiences, whether you are creating tragedy, comedy, suffering, misery, magical results. Starting point is always the thought. Yes or no? Now the question is, if starting point is a thought, can I have a thought irrespective of the trigger? ट्रिगर आने के बाद मेरे थॉट्स क्या होंगे, ये तो रिएक्टिव हो गया। शेयर सामने आ जाएगा
जैसे बोलते हैं ना, फिर मैंने कुछ नहीं करना, जो करना शेयर करेगा, वैसे ही है। तो अगर सिचुएशन अगर सामने आ गई, तो जो थॉट्स आ रहे हैं वो तो रिएक्टिव मोड हो गया। सिचुएशन में आने से पहले, यानी कि लाइफ में गेम खेलने से पहले अगर मेरे कोई थॉट्स आ जाते हैं, विल दैट बी ए प्रोएक्टिव वे ऑफ लिविंग? बिकॉज थॉट्स अगर फाउंडेशन है लाइफ का, कैन आई हैव ए क्रिएटिव थॉट और ए पॉजिटिव थॉट बिफोर आई एक्चुअली गेट इनटू द arena of my life, which means before I enter the office or before I start interacting with anybody else, before I start the day, सुबह शुरू दिन करने से पहले, before saying good morning to everybody else, can I say good morning to God? Can I say good morning to myself and have some positive thoughts? Yeah. For a positive foundation. Is that possible? Yes, very much possible. That is what we do in the me time. अपने लिए टाइम निकालो पहले सुबह सुबह। सुबह सुबह लोगों के साथ बात करने से पहले अपने आप से बात करो। बोलते हैं ना, मन हमारा बच्चा है, तो मन बच्चा है, उसको सोचना सिखाओ। शिवानी जी बोलती हैं अक्सर, हम बोलते हैं ना, सोच के बोलो, सोच के बोलो नहीं, सोच के सोचो। क्या सोच रहे हो पहले उसके बारे में सोचो, फिर सोचना शुरू करो। देन देयर वोंट बी एनी possibility of a negative thought. Then it is very, very clear I am cooking the recipe of only positive thoughts. And positive thoughts doesn't guarantee success or magical results in life, but it is a foundation on which you can build it. तो सुबह सुबह बुनियाद सॉलिड होनी चाहिए, नहीं? So how many of you agree with that? Raise your hands. Very good. Yes. So who would like to share? Go ahead. Go ahead. Vijay ji. Yeah, Shashidhar ji, completely agree on affirmations. At the same time, there are other things also one can do, like being in satsang, listening to positive stuff throughout the day, etc., etc. Yes. So Definitely. I think you can have several channels opening up which are in positive way, so that your thoughts are always positive. Very good. Very good. Yes. Absolutely right. इसीलिए सुबह सुबह बोलते हैं कि अपने माइंड को कुछ और आने से पहले, बिफोर यू इंटरेक्ट विद एनीबॉडी एल्स, पुट इन द डिवाइन विजडम। तो सत्संग अच्छा है, साधना अच्छी है आपकी, आप कोई यू कैन से वीडियोस ऑन डिविनिटी आजकल तो बहुत अच्छे हैं, तो आप कोई भी आप वीडियो ऐसा सुन सकते हैं जो आपको दिव्य ज्ञान दे। बिल्कुल सही है। लेकिन एक्सटर्नल एड की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या मैं अपने आप से एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट नहीं कर सकता आंख खोलते ही? मोबाइल खोलना तो बात की बात है, सत्संग में जाना तो और दूर की बात है। आंख मेरी Thoughts, पहली खुली, पहला थॉट क्या होना चाहिए मेरा? अभी बेड पे ही हूँ, आंख सिर्फ खुली है मेरी, सपना जस्ट टूटा है, नींद जस्ट खुली है, पॉजिटिव थॉट होना चाहिए या नहीं? बिकॉज बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव थॉट नहीं आने वाला है। Remember how many people, how many of you remember how we used to get up on Mondays, corporate world? sir, Monday को सुबह सुबह I don't agree here, हम्म, because देखिए thoughts come and go. हम्म, What you can do is train your mind with positiveness. yes, You cannot have a thought like I want a thought and it will come. Thoughts will come because you are in positive environment, your affirmations are there, irrespective you're of doing environment, satsang, I you're am doing saying, seva. irrespective of the Huh? trigger, can you have a positive thought? That was my point. You cannot. Thoughts will come and go. Why not? I don't think thoughts one can control. Why Since not? you are in positive environment, only positive thoughts will come. Forget the environment. Forget, आप हॉस्पिटल में हो, आप हॉस्पिटल में हो, आप पुलिस स्टेशन में हो, आप कोर्ट में हो, यही सबसे ज्यादा नेगेटिव होते हैं। ये तो सिचुएशंस है ना, देखिए बैकग्राउंड क्या होगा सर? सिचुएशंस या लोगों से इम्पैक्ट नहीं होगा, आपका अपना क्या थिंकिंग है, आपका अपना क्या आप अपने आप को कितना पॉजिटिव रखते हो एनवायरनमेंट वाइज, कितना एफर्मेशंस करते हो, कितना आप कितना रेगुलर रहते हो अपना इन मेकिंग श्योर दैट यू आर नॉट अराउंड नेगेटिविटी. अब नेगेटिव सिचुएशन विल नॉट क्रिएट अ थॉट विच इज नेगेटिव. व्हाई नॉट? योर माइंड विल क्रिएट. एक ही बात है ना सर, मैंने वही तो सुबह Yes, सुबह yes, yes. पहले बताया था। अगर आप शेर को देखोगे, वन ब्यूटीफुल टाइगर नहीं बोलोगे, आप बोलोगे मर गया, भागो या मारो।
पहला थॉट यही आएगा ना। तो सिचुएशन से अगर थॉट आ रही है वो रिएक्टिव मोड है, irrespective of the situation can I have a positive thought, that was my starting point. A big yes. है ना? Yes. Yes. तो सिचुएशन, मैं तो कहता हूँ, मैं आम भाषा में नहीं बोलना चाहता हूँ ना, सिचुएशन गई तेल लेने। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या आप सुबह सुबह उठते ही पहला थॉट, अभी कोई सिचुएशन नहीं बदला है, कोई कुछ नहीं बदला है, पहला थॉट पॉजिटिव आपका हो सकता है क्या? यस और नो? Absolutely, 100%. दैट्स इट, दैट वाज माय पॉइंट। स्टार्टिंग अगर पॉजिटिव है तो आपने एक बहुत अच्छी फाउंडेशन डाल दी आगे के काम के लिए। अब उसमें आप साधना करो, सत्संग करो, जो मर्जी करो, यू विल बी स्टार्टिंग ए डे विद ए पॉजिटिव थॉट इंस्टेड ऑफ सेइंग ओह गॉड। वो भी एक साधना ही है। Affirmations is है part of सर, साधना. बिल्कुल है। आप जो बोल रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ, अलग अलग नहीं बोल रहे हम, एक ही चीज बोल रहे हैं, है ना? बट वो प्रैक्टिस के बाद माइंडसेट बनता है। माइंडसेट पे तो मैं बाद में आऊंगा, अभी मैं सिर्फ थॉट की बात कर रहा हूँ। जो रोज एक नेगेटिव थॉट लेके उठता है, क्या वो एक दिन सुबह सुबह बोल सकता है आज से मैं पॉजिटिव थॉट के साथ उठूंगा? दैट इज द फर्स्ट फंडामेंटल चेंज दैट ए पर्सन हैज टू ब्रिंग इन। Just let us be with that, and meanwhile let's have more people share. So yes, Tarun has raised his hand, and then Amit ji kahan gaye? Yeah, after that Amit ji. Yes, go ahead, Tarun. Good evening, everyone. Yep. And absolutely, I guess when you are going through a tough phase, every morning you wake up with those thoughts which are pulling you down. And that is the time when you have to fight with your brain and come up with a positive, create that positive thoughts around you, no matter what the situation is. Like you said, hospital, उसमें किसी को भी अच्छे ख्याल नहीं आएंगे. तो it is you who has to stop them and create the thought. जो भी हम पहले डिस्कशन जहाँ से शुरू हुआ वो ये था कि हम थॉट क्रिएट नहीं कर सकते. That is not valid. We can create thought, but it is a fight to create thought that is there. So this is what I just want to contribute. I won't say fight, it is a practice. जो अभी विजय जी ने बोला प्रैक्टिस है, वो एक्चुअली में प्रैक्टिस है। Right. अब रोज सुबह उठो और बोलो आई में जो भी बोल के उठते हो, वाओ ग्रेट, व्हाट अ ग्रेट डे, आई एम अलाइव, कुछ भी बोल के उठ जाओ, मैं जिंदा हूँ, थैंक यू भगवान जी, मैं जिंदा हूँ, वेरी गुड। बहुत सारे लोग सोए थे कल, नहीं उठे, मैं उठ गया, बहुत बढ़िया बात है। Right. So be in gratitude, be happy, and then start your day. Possible? Yes, possible. That's a good change. How you get up in the morning. No, but most of the And people get up in the morning. Oh, same old home, same old mirror, same old face, same old people, same old boss. हाँ, सब कुछ पुराना है, जबकि कुछ भी पुराना नहीं है। Every day is a new day. तो वहां से आपका माइंडसेट बनेगा, लेकिन माइंडसेट बनाने के लिए पहले एक बार तो थॉट चेंज करना पड़ेगा ना। Right. Yes, so that's what the point was. Very good. Okay, let's have more people share. Yes, Amit ji, you wanted to share something earlier. Yeah, but then I can still yeah, so there are some times when we may not have an experience of something, but if somebody else has an experience of that thing, then obviously उसने वो experience किया है। जैसे for example अभी तरुण भाई ने बोला, शशि जी बोल रहे हैं, मैं बोलता हूँ for example, it is possible, a lot of people have experienced to create a thought, positive thought whenever it is required. Yeah. So even if we Google up, there are so many people, articles, techniques which can tell you that thought can be created. Now, number two, which is inspired, and I was anyways looking forward to share this example. I think I've shared with you the example of how to control thoughts and emotions in a complex situation. And the example is about the escalator at the airport. You remember we spoke about this few times. So I'll give you one example, interesting example. हम एक एयरक्राफ्ट से फ्लाइट से लैंड करते हैं एयरपोर्ट पे, एंड देन अपने लगेज को लेने के लिए वी गो टू द कन्वेयर बेल्ट एंड वी सी वेरियस बैग्स कमिंग आउट ऑफ द कन्वेयर बेल्ट वन बाय वन, ठीक, एंड वी सी एक के बाद एक नया बैग आ रहा है, और हमारा स्मार्ट माइंड को पता होता है हमारा बैग कौन सा है. सो व्हाट वी डू, हमारी आंखें और माइंड क्या करती हैं, दैट दे लेट ऑल द बैग्स गो and just continue to focus on whichever your bag is going to be. जिस स्मार्टनेस के साथ हम उस कन्वेयर बेल्ट पे से अपना बैग उठा लेते हैं, somehow trust me it is possible. मैं ये नहीं कह रहा कि हमने क्यों नहीं किया अभी तक, क्यों नहीं कर रहे हो. Somehow if one person on the planet has done this, to see every emotion like this and pick up whenever it is required using a very strong willpower, अगर एक भी इंसान का बच्चा कर चुका है तो हर एक कर सकता है.
So I have experienced this. और हम जब इस तरह की activities करते हैं, which is let's say NLP, hypnosis, using various tools, satsang, meditation, letting a problem be in front of us, उसका micro examination करना, उसका peripherally पूरा देखना कि उस problem के ingredients क्या क्या है, उसका dissection हो जाता है. Thoughts पे बहुत ज़्यादा focus करें. Problem आ रही है, आने दो. Emotion में बैठे हैं, meditation में बैठे हैं. Let the thoughts come. Not necessarily fight it, but process it. ठीक है, बीच में unpleasant moments आएंगे, catharsis तक हो सकता है, रोना तक छूट सकता है. But that situation, उसका ना atomic fission जिसे कहते हैं परखच्चे उड़ जाते हैं situation के, and you will see the individual ingredients which have been controlling that complex situation or influencing that complex situation. Absolutely perfect. Very good. With all of this, at the end of it, एक emotion को बैग की तरह उठाना जैसे कन्वेयर बेल्ट पे टेक्निकली पॉसिबल है. माइंड इज अ कन्वेयर बेल्ट एंड दोस थॉट्स एंड इमोशंस आर दोस बैग्स. Very good. बहुत बढ़िया. Yes. It is more. This is more pertinent in the case of emotions, but yes, we can do that for thoughts also. But 60,000 thoughts, monitoring in a day will be tough. So that is why I said forget about कि situation क्या है क्या नहीं है. Just stick to one basic idea of first thought in the morning. This anybody can do with a practice. Gratitude. Say something. एक सेकंड आ रहा हूँ सर. हाँ. Let's have some other people share. Gurkirat ji ने hand raise किया है. Yeah, go ahead. Amit ji, I have some question for you. Suppose your mind is experiencing some multi-dimensional thought patterns, then what would you do? Multi-dimensional. Yes, multi-dimensional. Like once, like you feel like you want to have, you want to think. You suppose you have the awareness that thoughts are coming. Suppose somebody you get this thought that somebody has gotten your awareness. Then what you would do? Like I would love to know your suggestion. Multi-dimensional. For example, एक moment पे कहीं पे आग लगी है. For example, हाँ जी. ये एक reason है जिसकी वजह से it will become the most important task at that point of time to accomplish. So whenever you are in a complex situation, जिसपे एक से ज़्यादा situation है, तो automatically body को पता होगा, mind को पता होगा कि सबसे ज़्यादा task important क्या है. जैसे fire से बचाना अपने आप को. इस समय अमीरी गरीबी नहीं समझ में आएगी. Right? So whatever is the most important will get automatically picked up. Sir, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि जब ये आप सोचते हो ना मोस्ट इम्पोर्टेंट, इफ दैट थिंग गेट्स कैप्चर्ड, इफ दैट थिंग डजंट कम, देन व्हाट वुड यू डू? गुरकिरत जी एक लाइव एग्जांपल दीजिए तो वी कैन बी एबल टू. नहीं, सपोज नहीं, जैसे कि आप कोई काम करने गए और आपका मेमोरी लॉस हो जाए वहां जाके, तो फिर आप क्या करोगे? जैसे कि हम थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? वी डोंट गिव इन टू दैट. एक आइडिया आता है ना कि हाँ, डोंट गिव इन टू दैट. व्हाट इफ दैट आइडिया डोंट गिव इन टू दैट डजंट कम? Then what would you do? That comes out of like some other dimension. Then what would you do? Like awareness भी चला जाए. I mean, it's very hard, I know. Yeah. So one is that it comes with the practice. Now, for example, maybe I am just 2-year-old in the spiritual sadhana. For example, you may be 1-year-old or 4 years old or 10 years old. Basis the time and the intensity of this overall mind management, looking at the mind from the spiritual perspective, over a period of time, this can happen, where automatically a priority framework will get developed in the mind. And yes. For example, maybe it is a irrelevant example, but a complete faith on divine that everything is happening for my right and highest good. Yes, that also. अब इस चीज की मेमोरी उस समय अगर आ गई तो ऐसा लगेगा कि ठीक है, even I have forgotten, मेरे को कोई काम करना था कंप्यूटर पे एग्जाम, मैं भूल गया, तो ये immediately माइंड में आना चाहिए कि everything will be nice, everything will be right. Beautiful. And I can go on and on, but then very briefly. Shashi sir. Absolutely right. Very good. Let's acknowledge Gurkirat ji and Amit ji. Yeah. Anybody else who has anything else to add? Leslie. Other thing that I used to practice, this is one more point. Yeah. That the idea of अभी मैं थोड़ी extra थोड़ी difficult problem मैं face कर रहा हूँ. Before that, what I used to do is I used to just go into the source of infinite possibilities. We all have that beautiful source, that beautiful source of purity where
no thought exists. There's no thought. There is no karma. Okay, there is nothing. There's beautiful Nothingness. stillness. When you go there, I think it itself is a very positive place to be in. It's a very wild zone to be in. It's a beautiful place to be in. So the negativity, positivity, दो concepts हैं ये भी खत्म हो जाते हैं. Right. तो नेचुरली पॉजिटिव ही रहता है आदमी, एक ऑप्टिमिस्ट एटीट्यूड रहता है, जैसे कि सिखिज्म में आता है चढ़ती कला एक राइजिंग ऑप्टिमिज्म. चढ़ती कला रहना है कि सब कुछ सब सही है, सब ठीक है, सब बढ़िया है, कुछ भी मुश्किल हो रहा है, सब अच्छा है. तो जब एक ये थोड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम जब आती है ना, तब थोड़ा मुश्किल होता है. दैट इज आई वाज आस्किंग कि सर आपने बहुत अच्छी एनालॉजी दी ऑफ यू नो दैट baggage that comes on that belt. It's a beautiful analogy. I really loved it. Thank you. So मैंने कहा आपका एक perspective बहुत सुंदर होगा. So I really liked your perspective also. The other perspective that you talked about it. So that also, like, I also try. So so that is about it. Yeah. Very good. Let's acknowledge Gurkirat ji. Thank you. Yes, Leslie. Yes, go ahead. I wanted to say something regarding the example that Amit ji chose on that baggage wala part. तो अगर हम baggage को thought मान के ही चलें, जिस I think so that is what Amit बोल रहे हैं कि मैं वही बैग उठाऊंगा जो वो मेरा है, and I'll let all the bags go. So basically यहाँ पे thought को मैं connect नहीं कर पा रहा because मुझे ऑलरेडी मालूम है कि मेरा बैग कैसा दिखता है और कौन सा है. So therefore I'm waiting for that bag and I'm letting all the bags go. Okay. But when we are choosing a thought, then I have no idea what thoughts are coming to me. But yes, I am going to create a different thought. वो एक अलग हो गया. So I mean, I'm slightly not connected के वो thought और वो bag का connection. Yeah, Amit, please go ahead. 10 seconds. It's okay. Amit ji, छोड़ दीजिए. We will not get into the details of that example. That was only a reference for how to choose your thought. So choose your thought कर सकते हो, that is good enough. Don't go into the baggage part. It is more relevant to emotions. I said that it is more relevant to emotions rather than thoughts. But then that is a very brilliant analogy, as Gurkirat ji also said. So we will leave it at that. Let's move on with the further details of the topic. Yes, Vijay ji, go ahead. Maybe मेरा expression में problem है because I still kind of I'm having contradictory view on what Amit ji said and what Shashidhar ji you are saying. मेरा thought process ये है और understanding ये है, please correct me if I'm wrong, कि see the subconscious is 20,000 times stronger than the conscious mind. So you train your subconscious through your sadhana and through your prayers and through your NLP or whatever you do. So you are creating a positive environment. Subconscious doesn't know what is right or wrong. It keeps getting programmed. Correct. And before you take an action consciously, your subconscious will trigger you and can change your things, you know, your thoughts. Yes. So basically thought in my mind cannot be created. In a long process, when you are subjecting yourself to learning, to positivity, etc., that creates a thought. But thought comes and goes. Yes, thought comes and goes. Thought comes and goes, and it cannot be created. It is getting created because of your programming. I get that. It's absolutely right. What you're talking is about the subconscious mind. है ना? Correct. So that is subconscious mind में जो हो रहा है, it is like a raging river, you can say, a river flooded. It will come like a huge, you can say, tsunami जैसे thoughts आते हैं. Subconscious mind अवचेतन की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि उसके जो भावनाएं हैं या उसकी जो thoughts हैं या emotions हैं, they come like a tsunami. There is no control on that. It is absolutely uncontrolled and it can absolutely wash you away. You are absolutely right in that. उसी को ट्रेन करने के लिए तो हम कॉन्शियस माइंड से ये कोशिश कर रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को हील करें, उसको प्रोग्राम करें. जितने भी टेक्निक आपने बताए उसमें क्या कर रहे हैं, कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड को हील और प्रोग्राम कर रहे हैं. यस, करेक्ट. क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में इतनी
इतना ज्यादा यू कैन से पोटेंशियल है उसमें कि इट इज लाइक बिगर देन द पैसिफिक ओशन। उसमें इतना है थॉट्स एंड इमोशंस, है ना। उनको अगर प्रोग्राम करना है तो स्टार्टिंग कॉन्शियस माइंड से ही होगा ना। Right, and that is where the faith angle also comes in, Amit ji, that when you have faith, then everything is good. Yes, we are coming to that. We are coming to that. We are stuck with the thoughts only. We have not moved ahead. Sorry. Yeah. I'll just keep short. So yes, so coming back to the thoughts are arising from the conscious mind as well as the subconscious mind. Conscious mind के thoughts जो हैं वो हम create करते हैं with full awareness, and that can be positive or negative depending on the situation, depending on my practice, depending on my sadhana, whatever, right? But subconscious mind के जो thoughts होते हैं, they are, what do you say, they are negative or positive? They are neither negative nor positive. क्या है वो फिर? They are just there. They are your karma. Okay, तो subconscious mind के patterns आपको मालूम है किस तरीके से होते हैं? Just look into your life and see what are the kind of patterns which are dominating in the subconscious mind. सारे विकार जितने हैं आपके जितने ईगो टाइप्स हैं, ये सब कहाँ पे गड़े हुए हैं? ये सब आपके चित्त में है, सबकॉन्शियस माइंड में, सेल्यूलर मेमोरी, करेक्ट। और ये कई जन्मों से, सिर्फ इस जन्म की बात नहीं हो रही। आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हैं उसमें, आपके पास्ट लाइफ कर्मा भी हैं उसमें, पास्ट लाइफ जितने भी पास्ट लाइफ हैं उन सबके ट्रॉमा वहीं पे हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड के थॉट्स और इमोशंस जो होते हैं वो अवचेतन माइंड के या मन के इतने गहरे तहखाने से निकल के आते हैं कि वो भयंकर नेगेटिव होते हैं, छोटे मोटे नेगेटिव भी नहीं। दे आर पॉजिटिव भी हो सकते हैं सर। होल्ड ऑन सर, एकदम से रिफ्यूट मत कीजिए, आप पहले सुन लीजिए जरा। राइट, तो वो बाय डिफॉल्ट इट विल बी वेरी वेरी पॉइजनस एंड वेरी वेरी टॉक्सिक। उसी को हम हील करने के लिए या उसको प्रोग्राम करने के लिए हम एफर्मेशंस या आप जो भी अपने टेक्निक्स लगाते हैं, क्यों करते हैं हम ये? क्योंकि कोई भी एफर्मेशन अगर हम 21 दिन तक प्रैक्टिस करें तो वो एक हैबिट बन जाती है। उसको हम 90 डेज तक और करते रहें तो वो सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है। सो वी आर स्लोली ट्राइंग टू प्रोग्राम द सबकॉन्शियस माइंड विच इज कंप्लीटली नेगेटिव, यू कैन अंडरस्टैंड इट दैट वे। उसमें पॉजिटिव की कोई गुंजाइश नहीं है। उसमें गुंजाइश तभी होती है when there is a invoking divinity। जब तक डिवाइन ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स नहीं होंगी सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी दिव्य ज्योति नहीं जल सकती। जो गुरुकिरत जी ने भी कहा, आपको फुल फेथ एंड डिवोशन के साथ जब आप साधना पे होते हो तो डिवाइन ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स विल ओनली लाइट दैट बल्ब इन द सबकॉन्शियस माइंड, जो कि हमारे सतोगुणी संस्कार बोलते हैं, विच इज व्हाट आई एम ए लवफुल सोल, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए पावरफुल सोल। सुना है आपने ये सब? तो ये जो लव, पीस, पावर, प्यूरिटी, डिविनिटी, हैप्पीनेस, ब्लिस, विजडम, ये संस्कार हैं सबकॉन्शियस माइंड में ही। ये दिव्य संस्कार हैं, लेकिन ये इन्वोक करने जरूरी हैं, क्रिएट नहीं करने, ये ऑलरेडी हैं वहां। जैसे हमारे पास्ट लाइफ संस्कार हैं, जैसे हमारे जेनेटिक संस्कार हैं, जैसे हमारे चाइल्डहुड संस्कार हैं, वैसे ही हमारे एक दिव्य संस्कार भी हैं और अपने विल पावर से हम उनको इन्वोक कर सकते हैं। That is why this process becomes very very, you can say very very you can say tedious kind of a practice। साधना है जिससे हम सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। दिस कैन बी अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके उसको पॉजिटिव करना इज नॉट अ जोक एंड इट इज नॉट अ वेरी स्मॉल एफर्ट। ये नहीं कि हाँ जी मैं 6 महीने से मेडिटेशन कर रहा हूँ, 6 महीने से हीलिंग कर रहा हूँ तो मेरी सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम पॉजिटिव हो गया। सॉरी, बहुत कुछ है उसके गड़े हुए तहखानों में से ऐसे ऐसे निकल के आएंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे थे। सो एज लॉन्ग एज यू आर ब्रीदिंग इन दिस लाइफ फॉर्म, यू आर ए वर्क इन प्रोग्रेस, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि आपके हर स्पिरिचुअल साधना आपको क्लींस करेगी, आपकी हर स्पिरिचुअल साधना आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को हील करेगी और आपके नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस से आपको, आपके तमस और रजस संस्कार से आपको फ्रीडम देगी। सो दैट इज द होल concept of the programming the subconscious mind, right? So that our thoughts, right now we are talking about thoughts but emotions along with that, yes, जो अमित जी ने कहा, thoughts and emotions of the mind. So these are very powerful things that we need to know, which we need to heal and make it positive. Yes, now the question comes, अभी तक कोई सवाल है इस पे? Otherwise we'll move on to intuition. What is intuition?
Anybody? What I said right now? Okay with everybody? All right, so now we talk of thoughts. तो हमने समझ लिया, और उसके साथ साथ थोड़ा इमोशंस भी समझ लिया हमने. अब हम बात करें अगर इंट्यूशन की, तो इंट्यूशन ऑब्वियसली हैज दैट डिवाइन ग्रेस एंड ब्लेसिंग. सो डिवाइन इंट्यूशन ही बोलते हैं इंट्यूशन जब आती है. लेकिन जब ये डिविनिटी नहीं होती है, इट इज देयर एज ए इंस्टिंक्ट, जो हम बोलते हैं ना, हमारे जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, हाँ, सर्वाइवल, ये जानवरों में भी होते हैं. सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स होते हैं. जंगल में अगर आप जा रहे हो तो जानवरों को जिंदा रहने के लिए जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स होते हैं, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस इंस्टिंक्ट. इट इज इन ह्यूमन बीइंग्स वी आल्सो कॉल्ड दिस एज द गट फीलिंग. कितने लोगों ने सुना है गट फीलिंग? तो आपका जो गट है, दैट इज द सोलर चक्र एंड द एब्डोमेन पार्ट ऑफ इट, राइट? तो गट है, हार्ट है एंड ब्रेन है. इनको कनेक्ट करने वाला है होता है एक वेगस नर्व. वेगस नर्व की बहुत इंपॉर्टेंस मानते हैं हीलिंग में, राइट? सो हेलो, am I audible? Twice, sir. Twice, sir. That was मतलब because you already हाँ. know आपका बैग कैसा दिखता है. Twice, sir. तो हाँ, अच्छा, शशि जी is back. Yes. Okay. So we were talking of the intuition, correct? तो thoughts के ऊपर हमने बात कर ली थी. We were talking of intuition, and intuition in, you can say, in general, it is available for all living beings in the form of instinct. And instincts में हम gut feeling जानते हैं. तो जो gut है उसका कनेक्शन हार्ट के साथ और फिर ब्रेन के साथ, which is actually seen in the connection of the vagus nerve. वेगस नर्व सबने सुना हुआ है. ब्रेन, हार्ट एंड गट, इसकी जो कनेक्शन होती है, दैट इज सपोज टू बी द you can say the foundation of that instinct. And when it is also, you can say, propelled by the divine grace and blessings, it becomes a divine intuition, which comes as a divine wisdom. जो हम अक्सर देखते हैं कि अचानक कोई आइडिया आता है विदाउट एनी एफर्ट. मेडिटेशन में है, कुछ डाउनलोड आया, सडनली the whole problem is gone and the solution suddenly emerges. It is like a bulb. दिमाग की बत्ती जल गई. हाँ, मिंटोस नहीं खाते लेकिन दिमाग की बत्ती जल जाती है. तो अक्सर वो दिखाते हैं कि भाई सर के ऊपर एक बल्ब जल गया. तो वो क्या है? दैट्स अ सडन इंट्यूशन व्हिच कम्स. द इंट्यूशन कैन बी सीन एज ए डिवाइन, यू कैन से, इंटरवेंशन. एंड सडनली जो जिग्सॉ पजल सॉल्व नहीं हो रहा था वो सॉल्व हो जाता. And the difference between intuition and any other instinct is that other instincts can be based in fear, can create a lot of turmoil. लेकिन जब intuition आती है, it will calm you down. बिल्कुल शांत हो जाते हो, and it gives total clarity, total understanding आ जाती है. And it has that element of divinity which you cannot overlook. बहुत ही clearly समझ में आ जाता है कि ये मेरी thought नहीं है, ये सबकॉन्शियस माइंड से नहीं आया है, ये डिवाइन की तरफ से आया है. एंड सडनली यू टेक एक्शन ऑन दैट एंड द रिजल्ट्स हैपन. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस और एक्सपीरियंस दिस इन लाइफ? यस. So that is the basic difference between thoughts and intuition. And today the connection is really bad again. So I was just trying to give the basic differentiation first. We will take on the discussions now. Okay. So anything that I have said which is not clear or you have anything to ask, please go ahead. कौन बोलना चाहेंगे? अमित जी and the new people. सुशील जैन जी. सर एक क्वेश्चन. हाँ जी. इंट्यूशन कैसे डेवलप करें? मतलब दे कुड बी लाइक, यहाँ पे काफी होंगे जो शायद एक क्वेश्चन होगा उनका. आप थोड़ा अगला टॉपिक वही था असल में. अगला टॉपिक वही था. ओके सर. So no problem. If you have, since you have asked it, we will have that part also. But before that, let me just check. Anybody has anything to ask? If you are not clear about thoughts and intuition, if there is still some confusion कि ये thought आ रहा है या intuition आ रही है या basic instinct है, हाँ, या survival के लिए जो thought आता है मेरा वो क्या है? So all this, if there is any confusion, you should ask. Yes, Leslie, go ahead. एक्चुअली ये मेरा हमेशा लाइफ का एक प्रोसेस रहा है कि
मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाया हूं बिटवीन इंट्यूशन, इनसाइट एंड थॉट, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि spirituality has always been my very, like a path where I earnestly work at. तो मैंने अनगिनत क्वेश्चंस करता रहता हूँ, उनके अंदर खोजता रहता हूँ, तो मेरे पास जब वो आता है, I mean the answer comes to me, and many a times the answer has come out of the, like blue, because अनगिनत किताबें पढ़ी हुई हैं, बट बिल्कुल किताबों से हट के आंसर आता है, and it becomes very clear कि किताबें भी क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, like so everything becomes very clear. बट मुझे ये नहीं मालूम पड़ता कि ये इंट्यूशनली आया है या ऑनगोइंगली मैंने ही मेरा ही दिमाग की बत्ती जली है, या मतलब आई बीन एबल टू क्रैक माय ओन थॉट प्रोसेस, तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, दैट इज फॉर श्योर. Okay. So how you can basically understand is that, as I said, thoughts या तो कॉन्शियस माइंड के होंगे या सबकॉन्शियस माइंड के होंगे. कॉन्शियस माइंड के थॉट्स तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इन द सेंस दैट आई एम, जैसे मैंने कुछ रट लिया, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए पीसफुल सोल, ओम शांति, आई एम ए पीसफुल सोल, ओम शांति, आई एम ए पीसफुल सोल, ये मैं कॉन्शियसली बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना. और ये अगर मैंने याद कर लिया है तो ये कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो सकता है. एनी एफर्मेशन फॉर दैट मैटर, जितने भी हमने एफर्मेशंस किए हैं, जो भी हम प्रोग्राम करते हैं सबकॉन्शियस माइंड को, इट इज ऑल बिटवीन कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड. वी हैव सीन दैट वेरी वेरी क्लियरली. करेक्ट. तो ये कॉन्शियस माइंड से ये साधना टाइप होती है. करेक्ट. सबकॉन्शियस माइंड में जो होते हैं ज्यादातर वो फेयर होते हैं, based in fear, and it will be like doubt, right? It can be anger, it can be jealousy, it can be greed. All the negative emotions के ऊपर जो भी based thoughts आते रहेंगे, ये सब subconscious mind के thoughts होंगे. क्लियर है यहाँ पे? इंस्टिंक्ट जो होते हैं, इट इज मोस्टली फॉर सर्वाइवल, जो जानवरों में भी होते हैं और इंसानों में भी होते हैं. तो जो बेसिक इंस्टिंक्ट आती है, गट फीलिंग जैसे किसी को आती है कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, कुछ खतरा है, आगे नहीं जाना, खतरा है. हाँ, तो ट्रेन से जा रहे हो, नहीं आज नहीं जाना, आज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आई एम नॉट फीलिंग वेल, अच्छी वाइब्स नहीं आ रही. तो वाइब्स जो नहीं आ रही हैं, ये गट फीलिंग से आ रही है, ये इंस्टिंक्ट है आपके. करेक्ट. इंट्यूशन विल ऑलवेज बी, as I said, have the touch of divine grace and blessings. उसमें कामनेस होगी, क्लैरिटी रहेगी, बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग होगी. इट इज लाइक आप एक हफ्ते से एक पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, लाइफ क्लियर नहीं हुआ, सडनली आप सुबह उठे और कुछ आइडिया आया, एक इंसाइट आई और आपने उस पर एक्शन लिया एंड सडनली द रिजल्ट केम आउट. दैट इज ए डिवाइन इंटरवेंशन, आई वुड से. दैट इज एन इंट्यूशन. इंट्यूशन में डिवाइन का हाथ रहेगा. यस. And if that is giving you the solution, then you don't have to worry about it, क्योंकि ये अभी तक आपके दिमाग से नहीं आ रहा था ना. तो ये डिवाइन का ग्रेस है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, और आपका जो फेथ है या आपकी जो साधना है, उसकी वजह से आपको ये मिला है. तो you have to look at it that way. So you develop that intuition. Now we come to how do we develop that intuition. Correct? But first the differentiation should be clear. I got it. So basically, मेरा I think why the confusion is there with me अभी समझ आ रहा है. जैसे ही आपने बोला ना ये डिवाइन से आ रहा है, तो I'm just talking, okay? So मैं ये कंफर्म होके नहीं बोल रहा हूँ कि there is a divine. यहाँ तो फिर अगर मैं बोलूंगा कि ये थॉट मेरा डिवाइन से आ रहा है, तो then first I have to believe there is a divine. अच्छा, ये भी है क्या? ओके. Did you get it now? हाँ, समझ गया. कंफ्यूजन क्यों आ रहा है? हाँ. Okay, so that is what पहले तो मुझे बिलीव करना पड़ेगा there is a divine, तब मैं कहूंगा अच्छा हाँ ये तो डिवाइन से है. बट मुझे लगता है कि ये सब मेरा ही जाल है और मैं उसी जाल में से मैं खुद निकाल के लाता हूँ इस चीज को. बट ये आता बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू है. हाँ, आउट ऑफ द ब्लू कहाँ से आ रहा है? ब्लू में कुछ तो होगा, कहाँ से आ रहा है? मैं इसको डिवाइन नहीं बोलूंगा, जो भी बोलो आप, आउट ऑफ द ब्लू बोलो, तो आउट ऑफ द ब्लू से जो आ रहा है वो इंट्यूशन है. आप डिवाइन मत बोलो उसे. ठीक है, एक सेकंड विजय जी, लेट मी हैंडल दिस. हाँ. ठीक है, तो आउट ऑफ द ब्लू मान लो, आउट ऑफ द ब्लू से जो आ रहा है, आपको ग्रेस आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आइडिया आ रहे हैं, एंड एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ लाइक दैट. तो व्हाट एन आइडिया सर जी बोलते हैं ना, तो सर जी की तरफ से आया, सर जी बोल दो, आप उसे कुछ भी बोल दो, नेवर माइंड. ठीक है. So there is something beyond which has given you that idea. Take it as that.
क्योंकि अभी मैं उस वाले एंगल पे नहीं जाऊंगा जहाँ पे मुझे लेके जाना चाह रहे हो, वहां पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो मैं अभी डिवाइन के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाने वाला, राइट। सो दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। नाउ कम्स, हाँ जी गुरकीरत जी, आप कुछ बोल रहे हैं? यस सर, एक उदाहरण देना चाहता हूँ फ्रॉम हाँ। गुरबाणी। आई वांट टू लाइक गिव एन एग्जांपल। सर लेस्ली जी, गुरबाणी में ना एक तुक आती है, ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, क्या जानो कि हर किया कहत कबीर कबीर। तो हम सोचते हैं हमने किया, हम कुछ भी नहीं करने वाले। हम कुछ नहीं करते, जो हो रहा है, ठीक है। अब ये आगे एक और क्वेश्चन आता है, कौन कर रहा है वो, उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर जो आइडिया होता है ना, असल में अब किताबें हो या फिर और कुछ भी हो, किताबें भी कहीं से आई हैं ना, किसी की उपज ही है। अब देखो, किसी ने टेक्नोलॉजी पैटेंट करी, somebody wrote a code, somebody invented some technology। अब वो आदमी ने पैटेंट कर दी वो नॉलेज, इस धरती पे ही है। अब वो आदमी मर गया, वो अपनी नॉलेज देके चला गया, उसे क्रेडिट मिल जाता है, पर नॉलेज तो इस्तेमाल हो रही है ना। सो इट मींस दैट दैट पर्सन वाज नॉट एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि बॉडी तो गई बट नॉलेज इज देयर। यस। Similarly, all knowledge is coming from some source। या ओके, सो आइडिया ऑफ मी सेल्फिशनेस, उस पे हम फोकस कर सकते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। इज इट मी, इज इट मी, इज इट मी, शुड बी। जो प्राइड का जो आइडिया ना, उस पे हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये तो कबीर जी ने तो यही बोला है कि हम तो करने वाले हैं ही नहीं, एब्सोल्युटली, ना ही कर एब्सोल्युटली सकते। फाइन गुरकीरत जी, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। हाँ, And I know what वही। Leslie will say, so I will not take Leslie's quote right now, because what he's going to say, he practices talks of Buddhism. Huh? Before you say anything, Leslie, I am ओके saying ओके, that. नो वरीज सर, तो नो वो वरीज सर। हाँ आत्मा नहीं है, अनात्मा की बात करता है, इसलिए वो बोल रहा है आत्मा ही नहीं है तो परमात्मा कहाँ से आया, हाँ हाँ है ना। हाँ, तो वो छोड़ देते हैं, अभी वो टॉपिक आज के लिए ठीक कोई नहीं है। बात नहीं। पर आप वो एक एनालॉजी जो टेक्नोलॉजी वाली है ना, जो इन्वेंशंस होती हैं, तो सी कोई ऑल द और भी यूज कर विजडम, सकता ऑल द विजडम, है। चाहे वो या मेटेरियलिस्टिक विजडम हो या फिर स्पिरिचुअल हाँ, विजडम हो, इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम विज्ञानमय कोश। अगर आप ओके। पंचकोश की बात करोगे, सब कुछ हम्म, विज्ञानमय कोश में है। इट इज ओके। लाइक एवरीथिंग इज देयर इन द क्लाउड, जैसे हम क्लाउड से डाउनलोड करते हैं, विज्ञानमय कोश में हाँ, है। दैट इज अगर आप कनेक्ट कर लोगे ब्यूटीफुल, उसके साथ तो डाउनलोड ब्यूटीफुल, मिलेगा, नहीं कनेक्ट किया तो आप बैठे रहो, है ना। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो यू हैव ब्यूटीफुल। टू अंडरस्टैंड इट दैट वे। जैसे मनोमय कोश है, सबका सबकॉन्शियस माइंड इज कनेक्टेड विद द यूनिवर्सल माइंड। हम्म Similarly, all the wisdom in this whole Brahmand is in a cloud, which you can say it is a Vijnanamay Kosh. Everybody has an access to it. Some people connect with it. जो कनेक्ट कर लेता है उसको डाउनलोड मिलता है, उसी को डिवाइन इंट्यूशन मिलती है। इसीलिए अगला स्टेप जो है कि इंट्यूशन कैसे डेवलप करते हैं, उसके लिए यही है कि आप कितना ध्यान में बैठ सकते हैं। जितना आप ध्यान में बैठेंगे, यू विल ट्रांसेंड योर बॉडी एंड माइंड, यू विल गेट कनेक्टेड टू दिस विज्ञानमय कोश। और जब डाउनलोड मिलेगा, इसको बोलते हैं बुद्धि योग, बुद्धि योग में आ जाती है। तो बुद्धि में जो राग द्वेष होते हैं, अटैचमेंट एवर्जन, रादर अट्रैक्शन एवर्जन, वो हट जाता है और उसमें क्या आता है, विवेक और वैराग्य। हाँ, तो स्क्रिप्चर्स की लैंग्वेज है, बट आई होप यू विल कनेक्ट, करेक्ट। तो राग द्वेष हट जाता है, विवेक और वैराग्य आता है, बुद्धि योग में आती है। इंट्यूशन ही इंट्यूशन है, सिर्फ डिवाइन ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी आपको, उसके बेसिस पे आप अपनी पूरी जिंदगी जी सकते हैं। यू डोंट नीड द कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड विल बी गाइडेड बाय द डिवाइन विल। तो वहां पे जो गुरकीरत जी ने कहा कि मैंपन सब खत्म हो जाता है, कि मैं करता हुए ही नहीं, मैं तो डिवाइन का चैनल हूं, लाइफ इज फ्लोइंग थ्रू मी, डिविनिटी इज फ्लोइंग थ्रू मी, एंड देन मैजिक एंड मिरेकल्स विल हैपन थ्रू मी। थ्रू मी मीन्स थ्रू दिस बॉडी माइंड। मैं नहीं हूं यहाँ पे, पर बॉडी माइंड के थ्रू डिविनिटी फ्लो करेगी, इंट्यूशन आएगी, बुद्धि योग में होगी, और मैजिकल मिराकुलस रिजल्ट्स क्रिएट होंगे। मेकिंग सेंस? यस। नाउ लेस्ली, इफ यू वांट टू से समथिंग यू कैन से दैट। See, one thing is there that everybody operates from all different systems. सबके अपने अपने patterns हैं, beliefs हैं,
The only thing is that I want to say is there's a constant search, okay, for an answer. बट मेरे अंदर ये डेफिनेट है, मैं किसी चीज को भी पकड़ के कंफर्म नहीं करता, मतलब मैं उसको पकड़ के कंफर्म करके एक बिलीफ नहीं बनाता। मैं समझता हूं, फिर उसको वहीं छोड़ देता हूं, एंड येट आई एम सर्चिंग, ताकि मैं बंद ना जाऊं उस चीज से। बिकॉज द मोमेंट एनीबडी एल्स विल शेयर एनीथिंग एल्स, या और भी चीजें अगर मेरे अंदर आने की कोशिश कर रही हैं, तो मैं अपने बिलीफ पैटर्न से उनको रोक दूंगा। जब तक मैं ओपन नहीं रहूंगा टू एवरीथिंग न्यू, सो देयरफॉर द मोमेंट गुरकीरत जी ने मेरे को समझाना शुरू किया, तो मैं समझ गया। उनने जब गुरबानी की बात करी कि उसको पहले हमने बिलीव किया कि हाँ ये जो बोला जा रहा है ये सच है, तो द मोमेंट उसको आपने बोला कि ये सच है, फिर आपने दूसरी चीजों को डेफिनेटली झूठ बोला, क्योंकि ऑपोजिट्स में काम करती है लाइफ। Okay. So therefore I keep everything open. I always keep myself open. मैं belief में नहीं फंस, that is the reason I was saying कि मुझे believe करना पड़ेगा कि there is a divine which is sending me all these signals like that. That's fine. I got that point. मैं आपकी बात समझता हूँ. Even if you don't say anything, I understand what you're saying. Okay, let's acknowledge Leslie and of course Gurkirat ji, बहुत बढ़िया आपने समझाया. Yes, anybody else? We have crossed the schedule time, but I will extend the session for some more time. Anybody who wants to ask or share anything? Vijay ji, yes, you were sharing something. मैंने आपको रोक दिया था. मेरा ख्याल आज मेरा चुप रहना ही अच्छा है। क्यों, क्या हो गया? हाँ? क्या हो गया? It's okay. If there is anything that is not gelling with you, you can share, no problem. मेरा thought process बहुत अलग है शशिधर जी, because as soon as you said that subconscious is all negative, my mind shut off you know. Okay. Because I firmly believe that you program your subconscious through whatever you do in life. Through the conscious, right? Through the conscious. Through conscious, you program your subconscious. Correct. Like Leslie ji said that things happen out of the blue. They don't happen out of the blue. They happen because he has read a lot. He has gone through a lot. Yes. You know, all that is programming him. Yes. साधना से प्रोग्राम होगा बाय डिफॉल्ट। अगर किसी ने कोई साधना नहीं की, वो 100% नेगेटिव ही रहेगा। एंड उसको नेगेटिव नहीं बोलेंगे आप। देखिए कोई बच्चा पैदा होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है? बता दीजिए बस। देखिए ये माइंड प्ले है जो नेगेटिव और पॉजिटिव करता है। सबकॉन्शियस डजंट डिफरेंशिएट इन एनीथिंग। सबकॉन्शियस डजंट, लेकिन जो इम्प्रिंट्स है तमस और रजस, उसके जो विकार हैं आपके, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आई एम रेफरिंग टू दोस षड्रिपुस। those are not the only thing. Divinity can also be in subconscious. Why do you think that only negative things are? वो इन्वोक करना पड़ेगा कॉन्शियस माइंड से, यही तो मैंने बोला। पड़ेगा, ऑटोमेटिक होता है सर। है नेचुरल वे में क्रिएट नहीं करना है। अंडरस्टैंड, मैंने ये नहीं कहा क्रिएट करना है। विजय जी लेट मी कंप्लीट। अच्छा बोलिए। नेचुरल वे में एज अ ह्यूमन यू शुड बी फुल ऑफ लव एंड डिविनिटी। इट इज करना नहीं पड़ता, इट इज लव एंड डिविनिटी होता है। हाँ है बिल्कुल है। यू अज्यूम कि सब कुछ नेगेटिव है अंदर और उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई गॉट योर पॉइंट। व्हाट आई सेड वाज, इफ यू रिमेंबर व्हाट आई सेड, आपके 5 सेट ऑफ संस्कार होते हैं। नाउ इफ यू आर आस्किंग मी, आई विल गिव इट मोर एलैबोरेटली। नहीं, मैं ज्ञान नहीं मांग रहा सर, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं। मैं भी ज्ञान नहीं दे रहा, आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि एक दिव्य संस्कार होते हैं, जो मैंने बताया था आपके, जो सतोगुणी संस्कार होते हैं, वो दिव्य संस्कार हैं। ये सतोगुणी आत्मा के संस्कार होते हैं, राइट? Am I audible? Am I there? No. लगता तो ऐसे ही। I think a lot of disturbance today, so we will close the session. But yes, just to address that question which Vijay ji said, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में जो सेट ऑफ संस्कार होते हैं, इनको 5 कैटेगरीज में बोला जाता है ना। एक होते हैं पास्ट लाइफ के संस्कार, एक होते हैं प्रेजेंट लाइफ के कंडीशनिंग के, सोसाइटी कंडीशनिंग जिसको हम बोलते हैं,
राइट। उसके बाद होता है एक हमारे जो जेनेटिक कर्मा होते हैं, तो जेनेटिक संस्कार जो होते हैं। उसके बाद एक होते हैं डिवाइन संस्कार, ये होते हैं। It's not that we have to create these. All these sanskars are there. Only thing is what we invoke will come. It is just like a playlist. Playlist में अगर मैं 5 गाने सुन रहा हूँ तो वो ही बाहर आएंगे, वो ही सबसे आगे आते हैं। बाकी सुने नहीं होते तो पीछे चले जाते हैं। और अक्सर क्या होता है ह्यूमन लाइफ में, हमारे जो नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं या नेगेटिव थॉट्स होते हैं उसी के प्लेलिस्ट चल रही होती है। तो जब तक कॉन्शियसली हम उसको प्रोग्राम नहीं करते, जैसे आपने बताया अलग अलग तरीके हैं, तभी वो डिविनिटी इन्वोक होगी, तभी वो क्रिएट होगा और नेगेटिव जो है सबकॉन्शियस माइंड वो पॉजिटिव होना शुरू होता है। एंड वंस इट इज पॉजिटिव देन it is, it can, along with the conscious mind, we can create magical results. Another thing is that with intuition it can happen like a fire in a jungle. जब डिवाइन इंट्यूशन आती है सबकॉन्शियस माइंड में, वो डिविनिटी एकदम आग की तरह फैलती है। उस समय आपके नेगेटिविटीज जो हैं, ये नेगेटिव संस्कार जो हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब जल जाते हैं। These seeds are burnt off. So that is why सत्संग साधना इसकी इतनी इंपॉर्टेंस मानते हैं कि उससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत जल्दी प्रोग्राम कर सकते हैं पॉजिटिविटी में। बट ये करना पड़ेगा, साधना नहीं कर रहे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप से पॉजिटिव नहीं होता है, उसको जगाना पड़ता है। दैट इज व्हाई वी से द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हैज टू बी इन्वोक्ड। इट इज लाइक ए स्लीपिंग जायंट। उसको जगा दिया तो वो मैजिकल रिजल्ट्स कर देगा, नहीं करेगा, वो सो रहा है तो कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट, दैट वाज द पॉइंट। सो आई वाज नॉट सेइंग सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी नहीं है, लेकिन उसको जगाना पड़ता है। दैट्स द ओनली थिंग। मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम लोग ले लेते हैं कॉम्प्लिकेशन। वी आर फुल ऑफ लव, जॉय, हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड। by Let's seed, be in the full of seed form. love. Huh? In the seed form, yes. Yes. So since we are full of love, gratitude, and all of that, let's stay with that and let's do those affirmations rather than talking about things. Obviously, वही करना है हमको, बस वही करना है। बट ध्यान में ये रखना है कि तब तक करते रहना है जब तक ये सारा का सारा नहीं करते कुछ नहीं कर रहना है सर, वो ऑटोमेटिक होता रहेगा। वही बोल रहा हूँ मैं, तब तक करते रहना है जब तक सांस चल रही है, क्योंकि दिस इज अ ह्यूज पाइल ऑफ बैकलॉग व्हिच हैज टू बी क्लियर। सो कीप डूइंग दैट, दैट्स ऑल। यही साधना है, यही सत्संग है, यही लाइफ है। परफेक्ट, वेरी गुड। सो नाउ यू आर हैप्पी? यस, ओके, गुड। आई एम ऑलवेज हैप्पी। लेट्स एक्नॉलेज विजय जी। भी खुश था। ग्रेट। Okay, so thank I you. hope everybody is clear on this, and of course new people who have come here are still there. If you want to share something before we close the session, so Seeth ji and Rukaiya Joshi ji, in case आप कुछ कहना चाहते हैं, otherwise we will close the session. No, thank you. It has given me some points and some thoughts. Okay. I would want to sort of ponder or read a little more on this. Very good. So you can leave your contact detail or something. We can send the recording of the video to you. Yeah. Sure. Sure. चैट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डाल सकते हैं। Sure, sure. सीत जी, अगर आप भी पहली बार आ रहे हैं तो आप डिटेल्स छोड़ दीजिए, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चैट बॉक्स में। We will get back to you. Right, with this we come to the end of the session. So thank you very much for your participation. Enjoy a great day, enjoy a great week, and we come back again with new topic next week, next Wednesday. Thank you, take care, bye bye. Hum Brahmasmi. Brahmasmi, yes.